First of all, good morning to all students. In the last video of class 11th accountancy, we discussed various basic concepts related to accounting and various basic accounting terms related to accounting. Today we will discuss the new topic which are related to the recording of transaction, that is accounting equation. What is accounting equation? Let's discuss it. Accounting equation signifies that the assets of the business are equal to the total of its liabilities and capital, that is owner's capital. यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये बताता है कि किसी भी बिज़नेस का जो एसेट्स होता है वो हमेशा इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है? लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल के टोटल के इक्वल होता है. यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ एसेट्स. कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी अमाउंट ऑफ गुड्स जिसे हमें हमारे बिज़नेस में ओन किया जाता है उसे हम एसेट्स कहते हैं. और लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है एनी अमाउंट पेड टू अदर्स, एंड कैपिटल का मतलब होता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस. सो जनरली अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो डिस्कस्ड इन ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट कि जनरली वी कैन से डैट कि बिज़नेस की जो एसेट्स होती है वो लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल के टोटल के इक्वल होती है. सो देयरफॉर वी कैन से assets equals to liabilities plus capital. The above equation can also be presented in the following form and its derivatives to enable the determination of missing figure of capital or liabilities. That is, assets minus liability equals to capital and assets minus capital equals to liability. So the basic accounting equation is assets equals to liabilities plus capital. The second accounting equation is capital equals to assets minus liability. The third accounting equation is assets minus capital, and last we can say assets minus capital minus liability equals to 0. So with the help of primary equation of accounting, that is assets equals to liabilities plus capital, we can also form a different types of accounting equation which helps to the determining the missing figure. क्योंकि you know very well क्वेश्चन में assets given हो, liabilities given हो, capital find out करना हो, या ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में liabilities दिया हो, capital दिया हो, assets find out करना पड़े. तो which are based on the different accounting equation. Since the accounting equation depicts the fundamental relationship among the components of the balance sheet, it is also called the balance sheet equation. ये बात याद रखिएगा कि जनरली जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है वो बैलेंस शीट के टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है. क्योंकि बिकॉज यू नो वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल. सो जनरली अकाउंटिंग इक्वेशन में यही तीन टर्म को इंक्लूड किया जाता है. सो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं. एज द नेम सजेस्ट, द बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. At any point of time, resources of the business entity must be equal to the claim of those who have financed these resources. The proprietor and outsider provide the resources of the business. The claim of the proprietor is called capital and the outsider is known as liabilities. Each element of the equation is a part of balance sheet which states the financial position of a business on a particular date. When we analyze the transaction, we actually try to know that how balance sheet of a business entity gets affected. Asset side of the business of the balance sheet is the list of assets which the business entries owns. The liability side of the balance sheet is the list of owners' claims and outstanding claims, that is what business entity owes. The equality of the asset side and the liability side of the balance sheet is an undeniable facts and this justify the name of accounting equation as the balance sheet equation also. अगर हम पूरे बैलेंस शीट को स्टडी करें तो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट का जो एसेट साइड होता है वो पूरी एसेट्स की लिस्ट को डिपेक्ट करता है कि एंटिटी के पास क्या क्या चीज़ें ओन की गई है. एंड लाइबिलिटी साइड जो है बैलेंस शीट में लिस्ट ऑफ ओनर्स क्लेम एंड आउटसाइडर क्लेम को डिपेक्ट करता है.
जो ये बताता है कि बिज़नेस ने कितना, ओन्स का मत होता है कितना अपने पास परचेस्ट किया है, कितना ख़रीदा हुआ है, और ओवेज का मत होता है कितना उधार लिया हुआ है। सो अगर बात करें कि बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड होता है और एसेट साइड होता है वो दोनों इक्वल होता है, और यही इक्वलिटी इस बात को शो करती है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी कह सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यू नो वेरी वेल कि अकाउंटिंग के फील्ड में जो भी पहले ट्रांजैक्शन इवेंट्स होता है उसको हम लोग जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग लैंग्वेज। जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी की है, हिंदी लैंग्वेज स्टडी की है, भोजपुरी स्टडी की होगी, पता होगा, यू हैव अ नॉलेज अबाउट कि जब भी कोई आपके पास ट्रांजैक्शन होता है या कोई भी इंसिडेंट होता है तो आप उसको अपने लैंग्वेज के थ्रू दूसरों को एक्सप्रेस करते हैं। वही बात होती है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, क्योंकि अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज होती है विच आर टोटली बेस्ड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपको मम्मी ने 100 रुपये दिया और कहा कि जाइए सब्जी लेकर आइए। आप गए मार्केट में सब्जी खरीद कर लेकर आए। अब अगर आप हिंदी में आके घर पे इन्फॉर्मेशन दोगे तो घर में बोलोगे कि मम्मी मैंने 90 रुपीज़ की सब्ज़ी लेकर आई या लेकर आया और 10 रुपये की सब्ज़ी नहीं लिया, या मैंने सिर्फ 90 रुपीज़ में जितनी सब्ज़ी आपने कहा था वो ले लिया, 10 रुपये मैंने बचा लिया। ये आपने बताया इन्फॉर्मेशन। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि मॉम वी परचेज्ड अ वेजिटेबल फॉर ₹90। यानी एक बार आपने इन्फॉर्मेशन दी तो किस लैंग्वेज में दी? हिंदी लैंग्वेज में। दूसरी आपने इन्फॉर्मेशन किस लैंग्वेज में दी? इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन अगर आप इसी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलेंगे ना, तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलने के लिए आप बोलोगे डेबिट एंड क्रेडिट की भाषा, बोलोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या वेजिटेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 90-90। यानी आपने, अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है, वो खुद की एक लैंग्वेज, एक भाषा है। एक बात हम आपको बताएं, यानी अगर आप जब अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज ले लोगे ना तो आप एंट्री से पढ़ देख लोगे डेबिट और क्रेडिट के टर्म से कि वो ट्रांजैक्शन क्या कहना चाह रहा है। ओके, सो सबसे बेसिकली चीज़ ये मान लो कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज भी है जिसमें अपने यहाँ बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को हम डेबिट एंड क्रेडिट के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो डेबिट और क्रेडिट का यूज़ कैसे करना है इसके लिए एक रूल्स भी हैं, क्योंकि जो भी आपके यहाँ बिज़नेस में ट्रांजैक्शन इवेंट्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप किसका हेल्प लेते हो? डेबिट एंड क्रेडिट का। हिंदी में इन्फॉर्मेशन को बोलने के लिए किसका यूज़ करते हो? सर वी आर यूजिंग हिंदी वर्णमाला को यूज़ करते हैं। इंग्लिश में बोलने के लिए आप अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हो, ए से लेके जेड तक वर्ड्स का यूज़ करते हो, इंग्लिश मीनिंग्स का यूज़ करते हो। तो वैसे ही अकाउंटिंग में भी किसी भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स को बोलने के लिए डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि किस समय हम डेबिट टर्म यूज़ करेंगे, किस समय हम क्रेडिट टर्म यूज़ करेंगे, यानी किस चीज़ को हम डेबिट के साथ ऐड करेंगे और किस चीज़ों को क्रेडिट के साथ यूज़ करेंगे, विच आर डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जैसे मैंने बोला ना कि आप घर से, आपको मम्मी ने कहा कि जाइए 100 रुपीज़ आपको दिया और 90 रुपीज़ के आपने सब्ज़ी खरीद लिया। आपने घर में आके दो तरह से इन्फॉर्मेशन दोगे कि एक बार हिंदी में बोला कि मम्मी मैंने 90 रुपीज़ की सब्ज़ी खरीद ली। दूसरा आप बोल सकते हो कि मॉम वी परचेज अ वेजिटेबल फॉर ₹90। तो आपने इन्फॉर्मेशन तो दे दी, लेकिन एज अ अकाउंटेंट अगर आप घर में ये बोलोगे वेजिटेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसको वही समझ पाएगा जिसको डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी। सो एट द लास्ट वी कैन से कि अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज इन विच वी यूज अ रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग लैंग्वेज को स्टडी करने से पहले, किसी भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स को अकाउंटिंग में बोलने से पहले आपको उस डेबिट एंड क्रेडिट को रूल को समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट वी स्टडी द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। द फर्स्ट वन एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यूज़। ये बात याद रखिएगा कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के लिए बिज़नेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उससे रिलेटेड अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। एसेट्स में, लायबिलिटी में, कैपिटल में, एक्सपेंस में, रेवेन्यूज़ में। एक्सपेंस में साथ साथ लॉसेस भी आता है, रेवेन्यूज़ के साथ साथ गेंस भी आता है। एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं एसेट्स किसे कहते हैं। यू नो वेरी वेल, एसेट्स क्या बताता है कि
एक बिज़नेस के पास कितनी प्रॉपर्टी ओन्ड है और उसे दूसरों से कितना पैसा लेना है। कैपिटल का मतलब ये होता है कि ओनर अपने बिज़नेस में कितना पैसा लगाता है। एक्सपेंस का मतलब होता है फ्यूचर बेनिफिट को अडॉप्ट करने के लिए, फ्यूचर बेनिफिट को अवेल करने के लिए हम प्रेजेंट में जो भी कैश आउटफ्लो करते हैं, जो भी खर्च करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। लॉसेस का मतलब ये होता है, यू नो वेरी वेल, कि जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू उसके कॉस्ट से कम मिलती है। जैसे अगर हमने किसी चीज़ को 100 रुपये में बनाया, लेकिन उसको जब सेल किया तो 90 रुपीज़ में सेल हुआ, तो 10 रुपीज़ आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। रेवेन्यू एंड गेन केस में रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर बिजनेस में जो भी सेल करने से पैसा मिलता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। एंड गेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, दैट इज़ कि अगर मैंने किसी चीज़ को 100 रुपये में बनाया और बेचा 120 में, तो 20 रुपीज़ आपके लिए क्या है, गेन। सो हम लोग बात करते हैं द टू फंडामेंटल रूल आर फॉलोड टू रिकॉर्ड द चेंज इन दीज अकाउंट। द फर्स्ट रूल इज़ फॉर रिकॉर्डिंग चेंज इन एसेट्स एंड एक्सपेंस। ये बात याद रखिएगा, एसेट्स एंड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए सेम रूल एप्लीकेबल होता है। क्या, इंक्रीज इन एसेट्स इज़ डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज़ क्रेडिटेड। यानी एसेट्स इंक्रीज़ करेगा तो डेबिट करेंगे, एसेट डिक्रीज़ करेगा तो माइनस करेंगे, यानी क्रेडिट करेंगे, सॉरी। इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिटेड। यानी अगर एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो उसको डेबिट करेंगे, या लॉस इंक्रीज़ होगा लेकिन लॉस या एक्सपेंस डिक्रीज़ होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। यस सर, बहुत ईजी है ये तो। यानी एक्सपेंस और एसेट्स के केस में ये केस होता है कि जब ये इंक्रीज़ करता है, यानी एसेट्स एंड एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ करता है तो इन सब को हम डेबिट करते हैं, और अगर डिक्रीज़ करता है तो इन सब को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड रूल फॉर रिकॉर्डिंग चेंज इन लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल एंड रेवेन्यूज़। यानी यहाँ पे तीन चीज़ों पे एक साथ रूल एप्लीकेबल होता है, लाइबिलिटीज़ के लिए, कैपिटल के लिए एंड रेवेन्यूज़ यानी गेंस के लिए। इसमें जस्ट अपोजिट रूल एप्लीकेबल होता है, इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ क्रेडिटेड, डिक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ डेबिटेड। ओके, increase in capital is credited and decrease in capital is debited. Okay, increase in revenue and gain is credited and decrease in revenue is debited. The rule applicable to the different kind of accounts have been summarized in the following chart. चलिए हम एक बार चार्ट्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं। पहला रूल है एक एसेट्स को लेकर, तो एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होगी तो उसे डेबिट करेंगे, एसेट जब भी डिक्रीज़ होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। गुड सर। लाइबिलिटी के केस में देख लीजिए, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ करेगी तो क्रेडिट करेंगे, और अगर डिक्रीज़ करेगी तो उसे हम डेबिट करेंगे। अपोजिट है। कैपिटल अगर इंक्रीज़ करेगा तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज़ करेगा तो डेबिट करेंगे। रेवेन्यू के केस में सेम एज इट इज़, रेवेन्यू अगर इंक्रीज़ करेगा तो डेबिट करेंगे, और इंक्रीज़ करेगा तो क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज़ करेगा तो डेबिट करेंगे। एंड लास्ट एक्सपेंस के लिए, अगर एक्सपेंस इंक्रीज़ करेगा तो डेबिट, डिक्रीज़ करेगा तो क्रेडिट। इसको हम समराइज चार्ट के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस कर देता हूँ ताकि आपके लिए और आसान हो। कितने अकाउंट्स थे सर? एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम को हम लोग रेवेन्यू भी कह सकते हैं। ओके, अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ हो रही है, अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट, डिक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज़ होगी तो डेबिट। कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज़ होगा तो डेबिट। इनकम इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज़ होगा तो डेबिट। इनकम इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। यानी आप ये देख रहे होंगे कि ये जो तीन अकाउंट हैं उनका नेचर सेम है। दे आर बेसिकली 5 अकाउंट। तो एसेट्स एंड इनकम के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, वेयर एज अ लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम के केस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, डेबिट। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब ऐसे समझ लीजिएगा कि एसेट्स एंड एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लेकिन लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे और घटेगी तो डेबिट करेंगे। ये बात एकदम हमेशा याद रखिएगा। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे रोहित स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 5 लाख।
हमने 5 लाख रुपए बिज़नेस में लगाया। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो बिज़नेस में कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है। हाँ सर, 5,000 रुपये, यू नो वेरी वेल कि अगर ओनर बिज़नेस में पैसा लगाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। और बिज़नेस में एक चीज़ और आ रही है, कैश भी आ रही है सर। हाँ, यानी 2 चीज़ इंक्रीज़ हो रही है बिज़नेस में, कैपिटल एंड कैश। अगर कैपिटल बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। कैश बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। क्योंकि कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और कैश इज़ अ पार्ट ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे एकदम क्लियरली। तो क्या हम करेंगे इस सिचुएशन में, सर इस सिचुएशन में हम लोग कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। हो गया ना, 2 साइड। यही तो टू एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट था कि एवरी ट्रांजैक्शन हैव अ 2 एस्पेक्ट एंड एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी अफेक्टेड एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। दोनों अकाउंट कौन से हैं, कैश और कैपिटल। दूसरी बात करते हैं, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ एन अमाउंट ऑफ 4,80,000। आप बैंक में गए और 4,80,000 रुपये से बैंक अकाउंट खोल लिया। तो सर बैंक अकाउंट खोलेंगे तो आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। बैंक अकाउंट इंक्रीज़ होना मतलब एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन सर वो 4,80,000 रुपये कहाँ से लेंगे, सर कैश में से लेंगे। तो एसेट्स घट भी रही है। यहाँ देखिए 2 चीज़ें हो रही हैं, एसेट्स का एक पार्ट बढ़ रहा है और एक पार्ट कम हो रहा है। एक पार्ट कौन सा बढ़ रहा है, बैंक का पार्ट बढ़ रहा है। बैंक इज़ अ पार्ट ऑफ एसेट्स एंड कैश इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एसेट्स। तो अगर आप बैंक में जाएंगे अकाउंट खुलवाने तो पैसा ही लेके तो जाएंगे अकाउंट खुलवाने, तो आपके पास से कैश कम होगा और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ओके, नाउ ब्रॉट फर्नीचर फॉर 60,000 एंड इशूड अ चेक फॉर सम। यानी अब आपने एक फर्नीचर ख़रीदा, तो फर्नीचर इज़ अ पार्ट ऑफ एसेट्स। तो सर फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हाँ सर, और जब चेक से पेमेंट करेंगे तो पैसा कहाँ से कम होगा, आपके पास से कैश कम होगा। नहीं सर, मैंने तो चेक काट के दिया, यानी वो पेमेंट कौन करेगा, सर वो मेरा बैंक पेमेंट करेगा। तो बैंक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी एसेट्स कौन सी इंक्रीज़ हो रही है, सर फर्नीचर एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है। और कौन सी एसेट्स कम हो रही है, सर बैंक की। तो यहाँ पे भी एसेट्स में इंक्रीज डिक्रीज़ हुआ है, बट फॉर्म ऑफ द एसेट्स डिफरेंट है। नेक्स्ट, ब्रॉड प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी लाल फॉर द बिजनेस फॉर 1,20,000 एंड एडवांस ऑफ 10,000 इज गिवन, इस कैश इज गिवन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 1,25,000 रुपये का और 10,000 रुपये एडवांस दिया किसको। तो इसमें ध्यान से देखिए कि मैंने 1,25,000 रुपये की प्लांट एंड मशीनरी तो हमारे पास आई, तो एसेट्स आती है, तो एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हमारे पास से कैश कितना गया, सर 10,000। तो 10,000 कैश गया, यानी एसेट्स कम हुई, यानी कैश कम हो जाएगा। सर आपने 1,25,000 रुपये की चीज़ में 10,000 रुपये ही दिया है, बाकी कितना नहीं दिया है। अभी मैंने 1,15,000 रुपये नहीं दिया है, तो 1,15,000 रुपये अभी फ्यूचर में देना है ना। जब भी कोई अमाउंट फ्यूचर में देना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज़। और लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन से आपकी एसेट्स बढ़ी 1,25,000 रुपये, एसेट्स का कैश कम हुआ 10,000 रुपये, और लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई 1,15,000 रुपये से, जो कि ऑलरेडी क्रेडिट होगी। क्योंकि यू नो वेरी वेल, जब लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो लायबिलिटीज़ को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और यहाँ लायबिलिटीज़ का नाम क्या होगा, रामजी लाल। रामजी लाल बिकम्स योर क्रेडिटर। जब आपको पता है कोई भी सामान आप उधार खरीदते हैं तो वो बंदा आपका क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स कहलाता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, डेट इज गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर 55,000। आपने गुड्स परचेज किया सुमित ट्रेडर्स से, गुड्स सर। तो गुड्स परचेज किया तो आपके पास क्या आया होगा, सर गुड्स आया होगा। गुड्स किसका पार्ट है, एसेट्स का। और एसेट्स बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कहाँ से ख़रीदा है, सुमित से। देखिए सिचुएशन में एकदम क्लियर नहीं है कि आपने जो गुड्स ख़रीदा है वो कैश में ख़रीदा है, क्रेडिट में ख़रीदा है। यहाँ बस नाम लिखा है कि आपने सुमित से ख़रीदा है, यहाँ ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि आपने कैश दे के ख़रीदा है। तो इसका मतलब आपने उसका पैसा नहीं दिया होगा, तो ये आपकी लायबिलिटी
इंडिकेट कर रही है कि यू आर परचेज अ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर किसी भी क्वेश्चंस में या किसी भी एग्जांपल में सिर्फ इतना लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित, कैश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इस सिचुएशन में क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं और सुमित आपके बन जाते हैं क्रेडिटर और लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। और यू नो वेरी वेल, अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी इंटरप्राइजेस फॉर 35,000। अब देखिए गुड्स कितने का था, 25,000, कितने में बेचा, 35,000। किसको बेचा, रजनी। आपका कहीं लिखा है कि आपने इसको लिए कैश मिला, नहीं सर। तो जिसको बेचते हैं उधार, अ पर्सन टू whom goods sold on credit, a person to whom goods sold on credit, it is known as debtor, and debtor is also a part of assets। तो आपका डेटर बढ़ गया यहाँ पे इस सिचुएशन में, यस सर बढ़ गया। तो डेप्टर बढ़ गया, तो डेटर इज़ अ पार्ट ऑफ एसेट, बढ़ा तो डेबिट करेंगे। कितने का गुड्स गया, गुड्स यानी स्टॉक गया, सर चला गया। डेटर हमारे यहाँ 35,000 रुपये के, गुड्स कितने का गया, 25,000 रुपये का। अब बताइए, आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि गुड्स था कितने का, कितने में बेचा, 35। फ़ायदा हुआ कि नुकसान, सर प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ, सर 10,000। और प्रॉफिट को भी हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट करते हैं ना। देख रहे हैं यहाँ पे डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, यानी डेबिट जितना हो रहा है उतना ही क्रेडिट हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, पेड द मंथली स्टोर रेंट 2,500 इन कैश। आपने अपने मंथली स्टोर का रेंट पे किया, तो रेंट पे किया तो रेंट इज़ योर इनकम और एक्सपेंस। सर सिंपली है, रेंट पे करेंगे तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है तो रेंट को क्या करेंगे, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। और जब रेंट पे करेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाता है तो एसेट जाती है, एसेट जाती है तो एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। द नेक्स्ट वन, पेड 5,000 एज सैलरी टू इट्स ऑफिस एम्प्लॉय। आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी दी, तो जब आपने सैलरी दी तो सैलरी योर इनकम और एक्सपेंस, सर इट इज़ एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस के केस में सैलरी को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्या गया, सर पैसा ही गया होगा, हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी है, हाँ सर लिखा है ना पेड 5,000, ऐसा तो नहीं लिखा है कि नहीं दिया है। तो सैलरी एक्सपेंस है, सो इट विल बी डेबिटेड। एंड कैश क्या हुए, कम हो गया क्योंकि आपने सैलरी पे किया। ओके, अब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं, वो है रिसीव चेक एज अ फुल पेमेंट फ्रॉम रजनी इंटरप्राइजेज एंड डिपॉजिटेड सेम डे इनटू बैंक। आपने चेक मिला आपको कहाँ से, रजनी इंटरप्राइजेस का, और उसको आपने बैंक में जमा कर दिया। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, रजनी से जब पैसा मिला तो कितना मिलना चाहिए था, आप ऊपर देख सकते हैं रजनी का ट्रांजैक्शन, रजनी से मिलना चाहिए था 35,000। उसने आपको पेमेंट किया किसके थ्रू, पेमेंट किया थ्रू बैंक, क्योंकि जब चेक से पेमेंट मिलता है तो चेक आप कहीं खुद उसका डील नहीं कर सकते, आप खुद उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप उसको बैंक में जमा करते हो और बैंक के थ्रू फिर कैश विड्रॉ करते हो। तो आपने उसको बैंक में तो जमा कर दिया है, यानी वो चेक से आपका कैश नहीं इंक्रीज़ हुआ होगा, एसेट्स तो इंक्रीज़ हुआ, लेकिन कौन सा पार्ट इंक्रीज़ हुआ, सर बैंक का पार्ट। सो एसेट्स इंक्रीज़ हुआ, लेकिन एसेट्स का कौन सा पार्ट इंक्रीज़ हुआ, बैंक। सो बैंक को डेबिट किया, एसेट्स को डेबिट किया। और क्या अब आपका क्रेडिटर जो डेटर था, सॉरी क्योंकि रजनी आपके क्या बन गए थे, डेटर, क्योंकि ये वो बंदे थे जिनको आपने उधार बेचा था। अ पर्सन टू whom गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सो इट ही इज़ डेटर। अब डेटर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, सर घट रहे हैं ना। अगर कोई उधार अपना दे के चला जा रहा है, उसने मुझे चेक दे दिया, तो अब मैं फ्यूचर में उससे फिर पैसा लूँगा, नहीं सर अब नहीं लूँगा। तो डेटर मेरे कम हो गए ना, तो डेटर कम हो गया यानी एसेट्स कम हुआ, और एसेट्स कम होता है तो एसेट्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और डेटर का नाम क्या है, रजनी इंटरप्राइजेस। सो ये बात आपको याद रखनी है कि हो सकता है कोई एक रूल एक बार एप्लीकेबल हो, एक ही ट्रांजैक्शन में 2 रूल अप्लाई हो जाए, ठीक है।
तो ये इस पर डिपेंड नहीं है, हो सकता है एसेट से रिलेटेड ही रूल हो। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ये पूरे वीडियोस में देखने की कोशिश की कि दे आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट: एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। अगर एसेट्स इंक्रीज होता है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो, कैपिटल इंक्रीज हो, इनकम, तो उसमें एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, इनकम अगर डिक्रीज हो ये रूल आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए काउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है विच आर रिलेटेड टू द अकाउंटिंग इक्वेशन, एंड दिस क्वेश्चन इज़ अ फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर अकाउंटिंग फील्ड। तो आपको कुछ बातें याद रखनी हैं। एक बात है कि एसेट्स, एक ट्रांजैक्शन में एसेट इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। जैसे आपने देखा कि बैंक बढ़ रहा था, कैश कम हो रहा था, तो दोनों ही एसेट्स का ही पार्ट है, बट डिफरेंट फॉर्म में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। लायबिलिटी भी इंक्रीज डिक्रीज़ हो रही है, कैपिटल भी इंक्रीज डिक्रीज़ हो रही है। बट इनकम और एक्सपेंस के केस में ये रूल है कि व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द अकाउंटिंग इक्वेशन, व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द अकाउंटिंग इक्वेशन, जब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे तो उसमें बात याद रखना है कि जब भी इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, गेन होगा या लॉस, ये 4 चीज़ें। अगर इनकम हो रहा है तो इनकम के केस में आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ कर देंगे, एक्सपेंस के केस में कैपिटल को डिक्रीज़ कर देंगे, विच आर रिलेटेड टू द अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बात याद रखिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन का जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है कि इनकम के केस में कैपिटल इंक्रीज़ होगा, एक्सपेंस के केस में कैपिटल डिक्रीज़ होगा, गेन के केस में कैपिटल इंक्रीज़ होगा, और लायबिलिटीज़ के केस में लॉस के केस में कैपिटल माइनस होगा। ये होता क्यों है? देखिए, जनरली जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो अगर बिज़नेस में इनकम हो, एक्सपेंस हो, गेन हो, लॉस हो, उसका एंटायरली इफेक्ट हमारे कैपिटल पे पड़ता है। अगर बिज़नेस में प्रॉफिट होता है तो हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अगर बिज़नेस में लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज़ होती है। उसी तरह से बिज़नेस में अगर इनकम एंड एक्सपेंस होता है तो विच आर डायरेक्टली इफेक्टेड टू द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि बिज़नेस में जो ओनर होता है, जो भी पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल वो क्यों लगाता है? ताकि वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके बिज़नेस से प्रॉफिट अर्न कर सके। और अगर बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी, और अगर लॉस होगा तो बिज़नेस में क्या होगा? कैपिटल डिक्लाइन होगी। सो आज के इस पूरे वीडियोस में हम लोगों ने 2 टॉपिक को स्टडी किया है। पहला टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। दे आर बेसिकली मेनली दिस अकाउंटिंग इक्वेशन दैट इज एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, एंड इसके हेल्प से हम लोग कुछ और अकाउंटिंग इक्वेशन भी क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, और तीसरा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ माइनस कैपिटल इक्वल्स टू 0, जो कि हम आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे अकाउंटिंग इक्वेशन हमें हेल्प करेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यू नो वेरी वेल अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज। सो जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजिशन इवेंट्स होते हैं तो उसे हमें डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में इंक्लूड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर कि जैसे सपोज़ ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये ट्रांजेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसको हिंदी में कह सकते हैं कि रोहित ने बिज़नेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से। हिंदी में बोला ना, इंग्लिश में रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। सो इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हाँ सर, बड़ा आनंद आया सुन के। तो यही आनंद आपको आगे भी आएगा। हम लोग एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। ये लैंग्वेज आपको इतने बड़े लाइन को इतना समराइज़ कर देती है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि जब कैश बिजनेस में आता है तो एसेट्स इंक्रीज़ हो रही तो एसेट्स को डेबिट करना चाहिए, और कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रही तो कैपिटल को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। सो यू फील दैट कि काउंटिंग एक लैंग्वेज है जिसमें हम क्रेडिट और डेबिट की भाषा में बोलते हैं।
इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, ए से लेके जेड तक। इसमें कोई हिंदी वर्णमाला का यूज़ नहीं होता। इसमें डेबिट और क्रेडिट के रूल को समझना होता है और विल द हेल्प ऑफ लोकल लैंग्वेज, जैसे हमारी जनरली लैंग्वेज है इंग्लिश में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो इंग्लिश की हेल्प लेकर हम डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में उस सारे ट्रांजेक्शन को प्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप बेसिकली जब अकाउंट पढ़ लेंगे तो अब आप तब डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में इंक्लूड करेंगे। यानी अगर आप सब्जी खरीद के घर लेकर आएंगे तो यू आर टॉकिंग इन द अकाउंटिंग लैंग्वेज। दैट इज़ इफ़ यू आर परचेज अ वेजिटेबल, तो आप ये नहीं बोलेंगे घर पे मम्मी मैंने वेजिटेबल खरीद लिया, आप ये बोलोगे वेजिटेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर कोई अकाउंट जानता होगा तो समझ जाएगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट द परचेज ऑफ द वेजिटेबल। सो आई होप कि प्रैक्टिकली वे में ऐसा करिएगा मत, हाँ जनरली ऐसा करना नहीं है आपको, बट ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है जिसमें डेबिट और क्रेडिट का यूज़ किया जाता है और अकाउंटेंट उस लैंग्वेज की हेल्प से बिजनेस की एक ट्रांजेक्शन इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं और उससे थ्रू इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। आज के इस वीडियोस में बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटिंग टू दिस टॉपिक, क्योंकि अब हम लोग न्यूमेरिकल फील्ड में एंटर कर चुके हैं, सो प्लीज़ आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।